Assalamu alaikum my dear students, how are you all? Hope that you all are fine and doing well at home. I'm your science teacher Miss Iram Naz and I welcome you all in this lecture. So before starting my lecture, I would request you all to stay healthy at home, wash your hands and sanitize them. Today our lecture is of week number 11. Today we will do exercise of unit number 3. So open your science books to page number 22 and 23. My dear students, before starting my lecture, I would request you to please open your page number 20 of your science book, and this part today we will read quickly about this part. It's myth and fact. मिथ कहते हैं एक ऐसी सुनी अनसुनी बातों को जो रियलिटी बेस्ड नहीं होती, और फैक्ट का मतलब है जो रियलिटी बेस्ड बातें होती हैं उसको हम फैक्ट कहते हैं. यहाँ पे आपको एक नया वर्ड नज़र आएगा, दैट इज़ कैक्टस. कैक्टस के बारे में मैं आपको जल्दी से बता दूँ तो व्हाट आर कैक्टस. Cactus are mostly found in desert where it is very hot and dry and with very little water around. The plant has adapted itself in such a way that it grows with very little water. Have you ever noticed the spines on the cactus? Have you ever seen cactus? Just hold on. My dear students, can you see this picture? This picture is of cactus, and can you see the things on the cactus? These are the spines. Can you see the spines? Have you noticed how thick is the stem? The stem is very thick. It helps the plants to store water for long time. Cactus do not have any leaves. They have just spines like these. यानी ऐसे कांटेदार ये पौधा होता है. Cactus do not have leaves, so what happened? The water do not evaporate. जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सारा कुछ जो वाटर जो वो कलेक्ट करता है वो उसके स्टेम में स्टोर होता है. Dear students, let's start reading. Can a cactus survive without any water or nutrients? क्या किसी nutrients और water के बगैर cactus survive कर सकता है? No, because जिस तरह हमें पता है कि plants need water, air and food to survive in a good soil. लेकिन a cactus needs to get nutrients from the soil and it needs water. A cactus has a thick fleshy stem and prickly spines, which are the form of leaves. The spines channel water to the roots. यानी आपको जिस तरह मैंने एक तस्वीर दिखाई थी. माय डियर स्टूडेंट्स, ये कैक्टस की पिक्चर है. मैंने आपको क्या दिखाया था कि ये वाले जो स्पाइन्स होते हैं, ये वाले जो स्पाइक्स होते हैं, यहाँ से स्प्रिकी पार्ट से रात के वक्त जब सुबह की ओस गिरती है, जब मॉर्निंग ड्यू गिरती है, तो वो इसके ज़रिए इसके अंदर कलेक्ट होते हैं प्लांट्स में और उसको स्टोर रखते हैं. क्योंकि इनके लीव्स नहीं होते इसलिए इनके जो है इवेपोरेशन नहीं होती. पानी जो वाटर की जो इवेपोरेशन होती है प्रोसेस होता है. ये बहुत एक लंबा टॉपिक है, ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है. आपने इतनी डिटेल में इसको नहीं अभी समझना. आपने सिर्फ अभी जो छोटी छोटी बातें हैं कैक्टस के बारे में, बस उसके बारे में अभी आप फोकस करें कि यहाँ से यहाँ तक आपने इस पार्ट को ज़रूर टिक करना है, बिकॉज इट कैन कम इन योर ऑब्जेक्टिव एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. My dear students, so this is your page number 22 and the next is page number 23. Before starting your lecture, I would request कि आप date and day ज़रूर mention कीजिएगा ऊपर और यहाँ पे HW ज़रूर write कीजिएगा. तो let us start our today's work. Exercise question number 1. Choose the correct answer. जिस तरह आपको नज़र आ रहा है हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं और हमारे पास 5 क्वेश्चंस है. आपने एक एक करके क्वेश्चन को रीड करना है और उसके बाद जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है उसको आपने टिक सर्कल करना है. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ दीज इज द टाइप ऑफ हर्ब? व्हाट इज़ अ हर्ब? मैंने आपको क्या बताया था? हर्ब आर वेरी स्मॉल प्लांट जिनकी बहुत वुडी वो जो बहुत टेंडर और सॉफ्ट स्टेम होती है, जो बहुत इजीली आप उनको अपने नेल से भी कट कर सके. सो लेट्स स्टार्ट. जैस्मीन, ऑप्शन बी मैंगो, ऑप्शन सी क्यूकम्बर एंड ऑप्शन डी कोरिएंडर. धनिया, खीरा, क्यूकम्बर, मैंगो, आम एंड जैस्मीन. जैस्मीन के फ्लावर्स होते हैं. तो आपको क्या लगता है इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? Yes, it's coriander. It's dhania. Very good because it is used for flavoring up the food.
क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फ्रूट? इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से कौन से ऐसा मतलब आपने बताना है जो फल नहीं है, जो फ्रूट की फैमिली से बिलोंग नहीं करता। नंबर ए ऑरेंज माल्टा, बी प्लम आलू बुखारा, सी पाइनएप्पल अनानास एंड डी रेडिश मूली। Yes, this is a very quick answer. Very good. Excellent. Shabash. Question number 3. Which of these is a seed? Let's again read it. Which of these is a seed? Number A, grapes. Number B, apricot. Number C, rose. या number D, orange pip. किसने मेरे लेक्चर को बहुत अच्छी तरह सुना था, याद करें मैंने पिप के बारे में क्या बताया था। डू यू रिमेंबर? दिस इट वॉज एन ओल्ड ब्रिटिश वर्ड फॉर सीड, क्योंकि ये दोनों जो है ये फ्रूट है, ये जो है ये फ्लावर है, एंड दिस इज ऑरेंज सीड। सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज? इनमें से कौन से फ्रूट्स हैं जो ग्रो करते हैं ट्री में? नंबर ए पम्पकिन, नंबर बी वाटरमेलन, नंबर सी मैंगो और नंबर डी ग्रेप्स। कौन से दरख्त पे उगते हैं? सोचें, ट्री है जिसकी। पम्पकिन? नो, पम्पकिन इज अ वेरी बिग फ्रूट, इट कैन नॉट ग्रो ऑन अ ट्री। व्हाट अबाउट वाटरमेलन? कभी किसी तरबूज को देखा है हैंग हुए दरख्त से? मैंने तो नहीं देखा एटलीस्ट। मैंगो? यस, आई हैव सीन मैंगोज ऑन ट्रीज। एंड व्हाट अबाउट ग्रेप्स? ग्रेप्स आर क्लाइंबर्स, वो तो ग्रेप वाइन्स होती हैं, यानी बहुत पतली पतली से। सो आवर करेक्ट आंसर इज मैंगो ट्री। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, what does the stem carry to the other parts of the plant? कि जो हमारा प्लांट का जो स्टेम पार्ट है वो क्या कैरी करता है? फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड द फ्लावर्स। नंबर ए एयर एंड वाटर, नंबर बी एयर एंड फूड, नंबर सी वाटर एंड फूड और नंबर डी ओनली एयर। एयर ज़मीन से मिलती है हमें, वाटर, ऑप्शन बी एयर एंड फूड, ऑप्शन सी वाटर एंड फूड, ऑप्शन डी एयर। What could be the correct answer? It's option C, water and food. We get water and the plant जो है वो stem के जरिए जो है water and food वो पूरे plants को provide करता है। Let's come to question number 2. Fill in the blanks. You can see a pink helping box over here, word bank over here. Let's start reading. Shrubs, झाड़ी, वो जिस तरह हम लोगों ने क्या पढ़ा था, श्रब्स। व्हाट आर श्रब? जल्दी से पहले सोचे मैंने आपको 3 प्लांट्स के टाइप्स बताए थे, याद है आपको? डू यू वांट मी टू रिकॉल इट वंस अगेन? चले, लेट्स रिकॉल इट। जी माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट माय व्हाइट बोर्ड। प्लांट्स, सो व्हाट डिड वी स्टडी? बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। वेरी गुड। स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड herbs. Do you remember it? कि हमने पढ़ा था कि trees वो वाले plants हैं जिनका stem का part क्या बताया था? It's very very hard. It's very very hard. जिनका stem का part hard होगा वो क्या होगा? वो होंगे हमारे trees। और जिनका जो stem का part होगा वो थोड़ा सा woody texture का होगा, यानी थोड़ा सा लकड़ी और woody texture का होगा। That would be our एंड श्रब। एंड जिनका स्टेम हमारा बहुत सॉफ्ट एंड टेंडर होगा, यानी बहुत नरम और बहुत जिसको हम बहुत इजी नेल्स के साथ भी कट कर सके, दैट इज कॉल्ड आर हर्ब। एंड लेट्स कम टू द क्लाइंबर एंड क्रीपर्स। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बारे में मैंने क्या कहा था? क्लाइंबर्स आर दोज प्लांट्स दैट नीड अ सपोर्ट टू ग्रो इन द अपराइट पोजिशन। कि अगर यहाँ पे हम एक स्टिक या कुछ लगाते हैं तो वो यहाँ से उनको टच करता हुआ, इसके साथ करता हुआ फिर अपने फ्रूट्स को प्रोड्यूस करता है। एंड व्हाट अबाउट क्रीपर्स? क्रीपर्स वो वाले प्लांट है जो ऑन द ग्राउंड ग्रो करते हैं, बिल्कुल ज़मीन के ऊपर। लेट्स गो बैक टू आवर साइंस बुक। जी माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. Fill in the blanks. These are the words given in a word bank: shrubs, trees, plant, creepers, grow and cactus. Now let's read one by one and let's fill up these blanks. Question number 1. Dash are the biggest plant. Dash are the biggest plant.
Yes, it's tree. So what you will do, you will cut from here and fill in the blanks like this. You will write trees over here like this. Question number 2. Dash are small plants with stems that are hard and difficult to bend. यानी कि जिनके वुडी स्टेम्स होते हैं, यानी जो हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं एंड इट्स मतलब उनको बेंड करना ज़रा टफ होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रेशर पुट करें तो वो इजीली ब्रेक्स होते हैं. तो दैट इज shrubs. Very good. Those plants are called shrubs. You will cut from here and fill in the blanks over here. Question number 3. A dash has a thick fleshy stem and a prickly spines. और ये तो अभी अभी हमने पढ़ा था, ये तो वही क्वेश्चन है, ज़रा गौर करिएगा दोबारा से. अ डैश हैज़ अ थिक फ्लैशी स्टेम एंड prickly spines. Yes, very good. It is cactus. You will cut from here and fill in the blanks over here. Next is option number 4. All dash needs sun, air and water to dash. अब ये दोनों चीज़ें तो आप खुद फिल करिए जी. मैं आपको ऑप्शन जो रिमेनिंग है those are plants, creepers and grow. These 2 questions will be done by yourself. Question number 5. Dash are plants with weak stem that grows along the ground. आपने सोचना है कि इनमें से कौन सा इसका ऑप्शन है जो आपने यहाँ पे फिल करना है.